Good morning, students. Students, as we are discussing about applications of biotechnology. So, in the same series, today I will discuss about one more application, and this application is in the field of the transgenic animals. Now, I want to tell you that what are transgenic animals? Now, transgenic, we can say that these are GMOs. These are a kind of GMO. GMO means genetically modified organisms. Now, you know very well that what are GMO. Okay, animals that have their DNA manipulated to possess and express a foreign gene are known as transgenic animals. Means such kind of animals which carry foreign DNA along with their own DNA. Means ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए में हम एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एनिमल्स अपनी डीएनए के साथ साथ इन फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को भी एक्सप्रेस करता है और वो प्रोडक्ट भी तैयार करता है जो कि हम फॉरेन डीएनए से बनाना चाह रहे थे. Such kind of animals are called as transgenic animals. So I hope you understood. यानी कि those type of animals have their DNA which is manipulated DNA. यानी इनके पास DNA तो है बट जो manipulated है, ठीक है, and possess and express a foreign gene जो अपने साथ साथ foreign gene को भी express कर रहा है, ठीक है. Now such there are various kinds of such kind of transgenic animals are here. Now transgenic mice is here, rat is here, rabbits are here, pigs are here, sheep, cow, fish, ठीक है. Now till now we have produced a variety of the transgenic mice, rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fishes, ठीक है. Now you may ask one question कि सर ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जाते हैं. तो देर आर सम कॉमन रीजन्स फॉर दीज रीजन्स वी आर डेवलपिंग these transgenic animals. The first reason is to understand normal physiology and development. Now if we are going to introduce one additional segment of DNA in an animal, so definitely why we are introducing this animal, so definitely why we are introducing that segment of DNA, because it will have a gene of our interest and we want to observe or we want to study how that particular gene expresses itself. So if we want to study about the normal physiology, ठीक है, तो in such case the transgenic animals are designed to allow the study of the gene regulation, their effect, their normal function on the body by introducing genes from other species that alters the formation of this factor and studying the biological effect and their results. So I hope so you understood. So how one gene expresses, how one gene can be regulated, what are the functions of that particular gene. We can introduce that particular gene into a transgenic animal and we can study the physiology as well as the development of various products as well as the animal due to that foreign or alien DNA. Now the second reason is if we want to study of a disease, okay, then we are producing transgenic animals. A number of the transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to develop a disease, because there are a lot of diseases which are caused by the defected genes. Now how these defected genes are causing different kinds of diseases and what are the symptoms or what are the regions of that particular disease. So for it we can produce a transgenic animal having that particular defected gene and we can study that particular gene with the help of that transgenic animals, ठीक है. So for that transgenic models has been developed for diseases like cancer, like cystic fibrosis, Alzheimer's disease. So we have been developed various models to study about the functioning of these defected gene like cancer disease, cystic fibrosis disease or Alzheimer's disease. Now third reason is very important to obtain biological products, ठीक है. Transgenic animals that produce useful biological products can created by introduction of the portion of the DNA which codes for a particular product such as a human protein, अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा. देखो अब कई सारे प्रोटीन्स ऐसी हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी कांट प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स in our body or ourself, ठीक है. So what we are going to do, we are introducing those genes, ठीक है, which are having the effect of our interest. मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम वो जीन सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे हमें हमारे इंटरेस्ट का प्रोडक्ट मिलने वाला है. हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं एक एनिमल में और उस एनिमल को बना दे रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, ठीक है. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन. दिस प्रोटीन इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फीसीमा डिजीज़, ठीक है. एंड इन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड such kind of protein in a genetically modified organism and we are obtaining this protein from here.
एंड आई वांट टू टेल यू द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल. इट वाज अ काउ. द नेम ऑफ द काउ वाज रोजी. ठीक है. तो इस रोजी काऊ से, देखिए अब जो काऊ का मिल्क होता है इसमें फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और ठीक है, और इसमें प्रोटीन का कंटेंट हमारे लेवल के इक्वल नहीं होता है. तो यानी रोजी काऊ एक ट्रांसजेनिक एनिमल थी. इस ट्रांसजेनिक एनिमल में, इस काऊ में ऐसा एक जीन इंट्रोड्यूस कराया गया जिस की जीन की वजह से इसका जो मिल्क था वो बड़ा एनरिच्ड हो गया. ठीक है, और इसमें एनरिच्ड हो गया इन द सेंस कि इसमें अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन करके जो प्रोटीन थी 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर तक ऑप्टेन की जाने लगी, जो कि ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो वी आर प्रोड्यूसिंग transgenic animals for the biological products too. Next, fourth, we are producing transgenic animal for the vaccine safety. Suppose we are going to produce some vaccine. ठीक है. एंड वैक्सीन बनाने के बाद सीधे हम उसे ह्यूमंस में टेस्ट तो कर नहीं सकते. तो इनिशियली वी आर गोइंग फॉर टेस्टिंग इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ठीक है. नाउ सबसे पहले से ट्रांसजेनिक माइस पे इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, या ट्रांसजेनिक माइस के बाद मंकीज़ में इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद जा करके ह्यूमंस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. द ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड टू यूज़ developed for use in testing the safety of the vaccine before they are used in the human. Like polio vaccine was initially tested on the mice, transgenic mice, and then it was tested on a monkey. Then finally it was applied for in human beings. Finally, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. देखो बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमें शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट टेस्ट ऑन ह्यूमन बींग्स. तो इनिशियली वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स विच आर केमिकल सेंसिटिव, एंड देन वी आर टेस्टिंग these chemicals on those transgenic animals, and we are obtaining the results. How the results are they? क्योंकि because they are already chemical sensitive, तो which kind of response they are showing, then we can observe or we can study the responses of animals against the chemicals, and we can check this chemical safety testing. ठीक है. So these are the different uses of the transgenic animals. Now along with it, I want to discuss some more issues. The first one issue I want to discuss with you, and this issue is ethical issue. Now कई सारे इथिकल इश्यूज आते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल मत बनाइए, इससे नेचर को नुकसान पहुंच रहा है, नेचुरलिटी ख़त्म हो रही है, कई सारे चीज़ें निकल के आती हैं, और कई सारे इससे डिस्प्यूट्स भी हुए. तो तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया हुआ है इसके लिए, जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज GEAC, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. तो यही डिसाइड करेगी कि कोई GM रिसर्च यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के पीछे काम करने के लिए कोई रिसर्च है, तो ये रिसर्च वैलिड है या नहीं है, या इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं क्या इनको मार्केट में लॉन्च पब्लिक सर्विसेज के लिए किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन GEAC, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग approval committee, and this is an organization which and whose setup was organized who was set up by Indian government, and it decides the validity of GM research as well as the safety of introducing GM organism for public services. Now the last concept which I want to discuss with you is biopatent. And biopatent means a patent is the right granted by government to an inventor to prevent others from मेकिंग कमर्शियल यूज़ ऑफ इन्वेंशन. मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँगा. जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, और मेरा कोई तीसरा दोस्त है, हो सकता है कि वो मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट को अपने नाम से लॉन्च कर दे और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर दे और अपने नाम से उसे बेचना स्टार्ट कर दे. तो टू प्रिवेंट इट, तो अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या किया हुआ है. ठीक है. ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं इन कंट्रीज़ की, दे आर प्रोवाइडिंग अ राइट, और आई हैव टू से दैट पेटेंट इज़ अ काइंड ऑफ राइट. तो उन्होंने एक राइट दिया हुआ है. ठीक है. अ पेटेंट इज़ अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर, जो गवर्नमेंट इन्वेंटर को दे देती है ये राइट, यानी पेटेंट दे देती है. ठीक है. जिसकी इस पेटेंट की अगर जैसे मैंने कोई चीज़ इन्वेंट की तो गवर्नमेंट से मैं पेटेंट ले लूँगा कि भैया मैंने, गवर्नमेंट को मैं बताऊँगा मैंने ये डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, और इसका पेटेंट आप मुझे दे दो ताकि कल के दिन कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके. ठीक है. सो बायो पेटेंट इज़ अ राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग कमर्शियल यूज़ ऑफ his invention. Now patent are granted for the biological entities and for production derived from the biological resources. तो आज गवर्नमेंट तो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ जो भी हैं, यानी बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके लिए भी ये बायो पेटेंट यानी बायो राइट्स देने लगी हैं. ठीक है. नाउ बायो पायरेसी, ये एक बड़ा इशू है. ठीक है. बायो पायरेसी का मतलब क्या है.
देखो किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर रीजन की कोई रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का बिना उस कंट्री को या उन स्टेक होल्डर्स को कंपनसेशन दिए बिना कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर उन रिसोर्सेज को यूज़ करती है और अपने नाम से बेचना स्टार्ट करती है, देन इट इज़ कॉल्ड, ये अनऑथराइज्ड है बिल्कुल। तो इस तरह का अनऑथराइज्ड सेलिंग जो है, कमर्शियल प्रोडक्शन जो है, इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है। इट इज़ अ टर्म यूज टू रिफर द यूज़ ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। ठीक है। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूं। 1997 की बात है। व्हाट हैपेंड इन द 1997, देयर वाज एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, हु गॉट पेटेंट राइट फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट। तो उसने क्या किया, उसने यूएस गवर्नमेंट से एक पेटेंट राइट ले लिया, यानी बायो पेटेंट करा लिया अपने आप। ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक बासमती की एक ब्रीड लेकर के आया और उन्होंने कहा कि इस ब्रीड को हमने इन्वेंट किया हुआ है, बट इट वाज नॉट ट्रू। ठीक है। एक्चुअली व्हाट दे डिड, दे क्रॉस्ड अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द बासमती अलॉन्ग विद द वैरायटी ऑफ द बासमती विच इज़ कल्चर्ड इन इंडिया। ठीक है। तो इंडिया की बासमती का क्रॉस करा दिया इन्होंने अपनी बासमती की एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ, और जो उसका प्रोडक्ट पैदा हुआ उसे अपने नाम से इन्होंने पेटेंट करा लिया, एंड पेटेंट कराया इन्होंने यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, और उसे यूएस और अब्रॉड की कंट्रीज़ में बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। नाउ बट इट वाज आवर वैरायटी, इट वाज इंडियन वैरायटी। तो वी कैन से दैट इट वाज बायोपायरेसी। ठीक है। सिमिलरली अदर सम अदर अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड बाय डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल प्लांट लाइक मेडिसिन्स और टर्मरिक मेडिसिनल प्लांट वर देयर, टर्मरिक और नीम प्लांट। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोपायरेसी। ठीक है। तो once again we will meet in the next class with the next chapter. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.